Yeah. Right. So guys, I'll start with very basics of the stock market, which is called this word, which is called savings. So what is savings? Most of the time, the people, what they think about it is the money that you put aside from your income is called savings. मतलब कि शिवानी जी, हिंदी और इंग्लिश little Yes, sir. Chalega. चलेगा? It's okay. English or mix? Language. It's Mix. okay. Okay, Hariji. So guys, I like your contribution more other than Hariji and Shivani ji. So if you can just open your at least mics so I can interact with you guys. Okay. तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल इंसान सेविंग्स को कैसे सोचता है? सेविंग्स को ऐसे सोचता है कि जो पैसा वो बचाता है अपने इनकम से, उसको वो सेविंग्स कहता है. Am I right or not? Like to ask Narendra. Yes, you are right. You are right. राइट. और कोई बात बताना चाहेगा? अग्रवाल जी, कैस अग्रवाल, पंकज जी, श्रुति, शिवेंद्र जी, मोहन. मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्या समझते हैं सेविंग्स के बारे में. Guys, if you can unmute yourself. भावना जी, संगीता जी. Saving for tomorrow. सेविंग्स फॉर टुमारो मतलब सेविंग्स का मतलब क्या? What I have not spent as an expenditure and it is lying in my bank in some form or the other, maybe savings account, fixed deposit account, or maybe in the form of other assets. It can be a house or a car, or so that is out of my savings, which I did not spend for my living. Correct. So in general terms, what we think that the money that you put aside, that's very general notion of an Indian population. कि आप जो भी पैसा अपने इनकम से बचाते हैं, that's called savings, right? But that's not the correct form, right? So normal person, what they think, इनकम में से जो भी एक्सपेंसेस करने के बाद जो बचता है, which is called savings, right? This is not correct, guys. The right form, which will be, it has to be like correct form, which will be income minus saving should be your expenses. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम में से जो एक्सपेंस हम पहले करते हैं उसके बाद जो बचता है उसको हम सेविंग्स कहेंगे. नहीं, हमें सेविंग्स को पहले करना है, राइट, और जो उसमें से बच जाए उसको एक्सपेंस करना है, ना कि अदर वे अराउंड. ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनकम, सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस. इनकम सबको अपना अपना पता है. सेविंग्स मैंने अभी बताया कि जो हम करते हैं, मतलब पैसा जो साइड में रखते हैं उसको बोलते हैं. और एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, अ गुड एक्सपेंस एंड अ बैड एक्सपेंस. तो व्हाट इज अ गुड एक्सपेंस, कोई बताना चाहेगा? एंड व्हाट इज अ बैड एक्सपेंस? क्या समझते हैं गुड एक्सपेंस है और बैड एक्सपेंस है? Those are good expenses, whatever required for the daily use, and rather than those which are not required for and being expended for no use. Expenditures which are used for no use. ओके. और कोई बताना चाहेगा? देखिए, ऐसे ही होता है, हम इतने बड़े हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, हमारा फाइनेंशियल के साथ में कुछ रिलेशन ही नहीं रहा है. That's the reason you will hear different stories for good expense and bad expense. कोई और बोलना चाहेगा कि क्या होता है, क्या समझते हैं वो? Necessity is good expense, luxury is bad expense. Okay. कौन था ये? अनिल Sir, जी? myself Anil. Okay. चलिए, ज्यादा नहीं लेते हैं. तो फाइनेंस की दुनिया में what is good in expense and what is bad expense? Any expense which generate further income for you, that's become a good expense. And any expense which does not generate further income, that's become a bad expense. For example, any investment that you do, that's become a good expense, right? It generate further income for you, that's a good expense. But
buying a home theater which does not generate any further income for you, that's become a bad expense. Okay, तो हम फाइनेंस की दुनिया में ऐसा बात करते हैं कि जो भी हमें नया पैसा बना के दे रहा वो अच्छा एक्सपेंस है, और जो कि नहीं बना के दे रहा वो बैड एक्सपेंस है. करेक्ट. तो हम क्या, कोई ऐसा कोई बता सकता है कि जिसके अंदर बोथ हो, दोनों की दोनों चीजें हो, जिसके अंदर गुड, एक ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके जो कि गुड एक्सपेंस भी है और बैड एक्सपेंस भी है? अनिल जी, जितेंद्र जी. सर गोल्ड परचेस है गोल्ड एक्चुअली ना. तो कैसे वो गुड है और कैसे वो बैड है? नहीं, एज अ मींस इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है, और नॉर्मली क्या है जो यूज करने के लिए भी ना, जो प्रेफर करते हैं ना. अच्छा, बट हम तो डेफिनेशन के साथ में जा रहे हैं, मतलब कि ऐसा कोई चीज जो कि आपको पैसा बना के दे, विच इज कॉल्ड अ गुड एक्सपेंस, राइट? और जो पैसा नहीं बना के दे रहा वो है हमारा बैड एक्सपेंस. तो क्या गोल्ड उस कैटेगरी में फिट हो रहा है, दोनों की कैटेगरी में? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ठीक है सर. इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से है. चलिए, तो हम इन्वेस्टमेंट पे भी बात करेंगे, क्योंकि उस पे भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यू है. मैंने इस टॉपिक्स को इसलिए लिया है क्योंकि इस पे बहुत अलग अलग व्यूज के साथ में आते हैं. सेविंग्स क्या होती है नहीं पता होता है, एक्सपेंसेस का अलग अलग व्यूज हैं, जैसे भी बोला नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से. मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ. बाइंग अ होम, राइट, विल बी व्हाट? अगर आप एक घर खरीदते हैं आपके खुद के रहने के लिए है, तो दैट विल बी अ बैड एक्सपेंस. बट इफ यू बाइंग अ होम एंड रेंटेड आउट, ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका? अ गुड एक्सपेंस, राइट? सो बाइंग a mobile phone for personal use, it will be a bad expense, but buying a mobile phone to generate income for official use, it will be a good expense. So हमें अपना good expenses, you have to increase your good expenses and decrease the bad expenses if you want to become a wealthy person. As simple as this. Okay, तो अभी आपने बोला, एक वर्ड बोला जितेंद्र जी ने, इन्वेस्टमेंट. तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई कोई डिफरेंस होता है जितेंद्र जी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में? आपसे ही पूछ लेते हैं, जान लेते हैं. सेविंग्स तो नॉर्मल चीज होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय मींस अपना जो ज्यादा पोर्शन ऑफ जो इनकम होता है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हम अपने. मतलब क्लियर नहीं हुआ अनिल जी को, क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा क्लियर कीजिए. और थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपका क्या है कि सेविंग्स क्या हुआ और इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, फर्क क्या हुआ दोनों में? ये पहले तो बताइए, फर्क है या नहीं है? There's a difference. डिफरेंस है. तो क्या फर्क है, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक बार. Investment beats the inflation. एक्सपेंस को कटल कर सकते हैं हम लोग सेविंग करने के लिए. नॉर्मल हम एक्सपेंस करें कर सकते हैं, तो सेविंग हो सकता है. अच्छा, और फिर इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? फिर जो एक्स्ट्रा जो अपने पास जो मनी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो इन्वेस्टमेंट हो गया. ओके, नो वरीज. Till the time, अनिल जी या कोई और बताना चाहेगा? till the time not invested is saving. ओके. If the saving is invested, it becomes saving. It becomes investment. चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है तो आगे इसको थोड़ा सा मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? कोई भी प्रोडक्ट और एसेट जो हम परचेज करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट फर्दर इनकम इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट इज सेविंग्स? मनी दैट यू पुट असाइड. Okay, it's called a savings. Money that you put aside from your income is called savings. For example, let's say Jitendra ji is earning like 1 lakh rupees, right? And he's putting 20,000 into his say wallet. So that's the part that 20,000 is the savings that he's doing. But out of that 20,000 rupees, if he invested in any of the financial instrument, let's say 15,000 rupees,
So that 15,000 become an investment which generate further income for you. But savings कोई further income generate नहीं कर रहा, वो खाली अपने पैसे को अपने साइड में तिजोरी में बैंक नहीं बोलूंगा, तिजोरी में, पर्स में, वॉलेट में कहीं पे आपने रखा हुआ, that's called a normal savings. Okay? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोगों का मानना अलग अलग है, तो इसलिए ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि जो हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. सो इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी इन एसेट, नॉट इन करेंसी, राइट. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज करेंसी में क्या होता है, कोई बताएगा आज की डेट में कहते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना चल रहा है, कितना मिलता है हमें सेविंग्स बैंक में एज एन इंटरेस्ट पार्ट? 4%. 4%, 3 to 4%. It should be lesser than that. Lesser than it? 2%. 2%, 3%, 4%. करेक्ट. तो और एक और टर्म होता है जिसको बहुत लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. वो क्या होता है? महंगाई. करेक्ट. तो अगर आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं, सेविंग्स बैंक में रख रहे हैं, बैंक में नहीं बोलूंगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, तो क्या होने वाला है? आपको उसके ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2, 3, 4%. और महंगाई जो कि इन्फ्लेशन है वो कितने दर से बढ़ रही है? 6% +- 2. इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर लेट्स से कि आपने अगर अपना पैसा 100 रुपीज रखे बैंक में, so after 1 year that 100 rupees will become how much? 103 rupees after the interest part. But because of inflation, that 103 rupees will become 97 rupees. तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, एक्चुअली इट्स गोइंग डाउन ईयर ऑन ईयर बेसिस, नीचे जाता जा रहा है. इसलिए हमेशा बोला जाता है, कोई भी अगर आप अमीर इंसान को देखेंगे वो हमेशा बोलता है कि आपने पैसे को कभी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, क्योंकि उसमें पैसा बढ़ नहीं रहा होता है. चाहे आप 100 रुपए रखो, 1000 रखो, लाख रखो, 10 लाख रखो, 10 करोड़ रखो, 100 करोड़ रखो, इट्स गोइंग डाउन ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट. सो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑलवेज इन एसेट. Okay. Because every super rich person, they always invest in asset like land, gold, market and stuff, equities and stuff. Why? Because rich people, they always have a philosophy where they feel like they do not work for money, they make money work for them. जबकि एक गरीब इंसान क्या करता है? वो पैसे के लिए काम करता है, राइट. जबकि अमीर इंसान, दे डू नॉट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम. कैसे? वो अपना पैसे को कुछ ऐसी क्लास में लगाते हैं, ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो पैसा कमाते हैं. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, बी डिफरेंट एग्जाम्पल. सो इट्स ऑलवेज यू हैव टू मेक श्योर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, that you invest in those specific assets which make money for them. एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? लोन लेता है और पूरा टाइम उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट को क्या करता रहता है? पे करता रहता है. जबकि सेम जो रिच इंसान है, उसने वो क्या किया था? वही पैसे को लोन के हिसाब से दिया होता है बैंक को या स्पेसिफिक इंसान को, तो वो उस इंटरेस्ट से क्या करता है? They earn from that specific money, right? जबकि एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? उस लोन को लेके they do that on personal things, like they go on shopping, घूमने चले जाते हैं, या कोई ऐसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे वो पैसा बढ़ाती नहीं है, कम करता रहता है. तो do not do that. It's all about investing more, not about earning more. तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कि पैसे को बढ़ाते हैं, यू विल ओनली ग्रो इन दैट सेंस. ओके. आप सबके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ वेल्दी और सुपर रिच पर्सन? कौन कौन बनना चाहता है? जितेंद्र जी, अनिंदर जी, पंकज जी, शुभांगी, रमाकांत जी,
शिवानी मैडम बोलते एवरीवन। एवरीवन। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अविनाश जी आपका क्वेश्चन ही गलत है, प्रवीण जी कह रहे हैं मैं, प्रवीण जी कह रहे हैं मैं, बहुत लोग कह रहे हैं एवरीवन, राइट। तो क्यों, बनना तो हर कोई चाहता है, बट क्या आपको पता है कि आपका पैसा ग्रो कैसे कर रहा है? कितने लोगों को पता है कि दे आर अवेयर कि उन कैलकुलेट करना आता है उनको कि उनका पैसा कैसे ग्रो कर रहा है, कितना परसेंट कहां से मिल रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है? बनना हर कोई चाहता है, बट हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा पैसा कैसे ग्रो कर रहा है, या हमें वो नॉलेज ही नहीं है कि हमें कोई चीज अगर खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है, और खरीदनी चाहिए भी नहीं खरीदनी चाहिए, इज एबल टू बीट इन्फ्लेशन और नॉट। एक एग्जांपल देके खाली आपका थोड़ा सा दिमाग के घोड़ों को खोलने की कोशिश करूंगा, विच इज लाइक एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, विच इज लेट्स से एक बंदा आपके पास में आता है और बोलता है कि गाइज इन्वेस्ट 50,000 rupees per year for next 25 years for your son's marriage or daughter's marriage and will give you 31 lakh rupees। तो चलिए जितेंद्र जी से बात करें। जितेंद्र जी अनम्यूट करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा एक बंदा आता है फ्रॉम अ वेरी गुड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लेट से कोई भी अच्छे बैंक से, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एलआईसी या कहीं से भी आता है, और वो आपको ये ऑफर करता है कि आप ये चीज बाय कीजिए एंड विल गिव यू 31 लाख रुपीज आफ्टर 25 years फॉर इन्वेस्टिंग 50,000 per year, so will you take this or will you not? 25. Is it a good investment, or will you say yes, or will you say no for this investment? या कोई और बताना चाहेगा? शिवानी, हाँ जी। Not a good investment because inflation बढ़ रहा है और हर चीज का दाम बढ़ रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 31 लाख आफ्टर 25 years मिलता है तो वो इट इज नॉट कैपेबल टू बाय द थिंग्स which is required at that time of marriage। ये Okay. इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन के साथ अगर रन कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? आपका आवाज आ रहा बट नाम मुझे नहीं पता चल पा रहा है। हरि किशन नवल। सॉरी, हरि किशन नवल। अच्छा पवन जी, बिल्कुल। पवन जी, तो ये आपने जो बताया है, कोई किसके पीछे कोई कैलकुलेशन है आपका, या इट्स लाइक एन कि ठीक है हमें खाली बात कर रहे हैं कि 31 लाख रुपीस नहीं हो पाएगा? क्या कैलकुलेशन किया इसके पीछे आपने, और कैसे कैलकुलेशन किया? मेन चीज वो है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि अच्छा है या बुरा है, बट कैसे अच्छा है और कैसे बुरा है क्या वो हमें पता है? सर ऐसे बहुत सारे एसेट्स है जिनका अगर ग्रोथ अगर बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी के अंदर में सब इक्विटी तो बढ़ता नहीं है, फिर भी बहुत सारी इक्विटी वो बढ़ती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। रियलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। लेट्स से कि आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक ऑप्शन है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है अपने काम में बिजी रहता है, अपने घर में बिजी रहता है, दे आर हाउसवाइफ, दे आर वर्किंग क्लास, राइट। सो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज। वो सुबह जाते हैं ऑफिस और शाम को घर आ जाते हैं, या वो घर पे अपना हाउस होल्ड संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एक्चुअली, बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज कि उनको पता ही नहीं है कि और कौन इन्वेस्टमेंट है। हम तो एक नॉर्मल के साथ में लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही शिवानी जी। A lot of people are saying no, 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 but my question is, are you aware that why it is no and why it is yes? क्या हम इसमें कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि क्यों गलत है ये? चलिए उससे पहले एक थंब रूल बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बात बताया कि पैसा जो हम अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं, राइट, तो वो बढ़ रहा है 2-3-4% से, बट जो हमारा इन्फ्लेशन है वो है 6% के हिसाब से। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हम वो ही करेंगे जो कि हमें देगा मोर देन इन्फ्लेशन, तभी हमारा पैसा बढ़ने वाला है, अदरवाइज विल बी गोइंग डाउन।
राइट? तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या होता है। एक नॉर्मल इंसान कैसे कैलकुलेट करता है इसको? 50,000 रुपया महीना, सॉरी साल का, तो 25 साल के लिए कितना इन्वेस्ट किया? 12,50,000 rupees. That's how a normal Indian calculate this. And for 12,50,000 rupees, you're getting 31 lakh rupees. तो अब ये सुन के कैसा लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? कि 12.5 लाख रुपया देना है और 31 लाख रुपया मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द नॉर्मल पर्सन जो होता है वो क्या बोलने वाला है, यार डील तो अच्छा लग रहा है कि 12.5 लाख रुपए टोटल देना है 25 साल में और मुझे 31 लाख रुपए मिलेगा, तो दे से यस टू दैट। बट अगर आप देखेंगे इसके अंदर, यू ओनली गेटिंग लेस देन 6%, which is approximately 4% which you're getting here, right? तो हमें अमाउंट नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि हमें एक्चुअल में क्या 6% से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें वो पता होना चाहिए। तो इस धोखे में मत आइए कि मुझे 12.5 लाख रुपए दे के मैंने 31 लाख रुपए मिल रहा है तो मुझे ये ले लेना चाहिए, इट विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। नो, राइट? यू शुड बी अवेयर कि कितना परसेंटेज में मिल रहा है, आर वी एबल टू बीट इन्फ्लेशन और नॉट। सो दैट्स व्हाट योर मेन एम शुड बी। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि एक और पर्सन आता है फ्रॉम अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट और वो आपको बोलता है कि सर और मैम इन्वेस्ट कीजिए 4,000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 25 years एंड दे विल गिव यू हाउ मच, 51 लाख रुपीज आफ्टर 30 years। तो बताइए इसमें कर लेंगे या छोड़ देंगे? इसमें कर लेना चाहिए कि हमें छोड़ देना चाहिए? व्हाट यू फील लाइक? एक नॉर्मल इंसान फिर कैसे कैलकुलेशन करने वाला है? 4,000 रुपए महीना, साल का कितना हो गया? 48,000 रुपीज। सो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है 30 साल में? मोटा मोटा अगर मैं लगाऊं तो 14,50,000 रुपए के आसपास। तो 14,50,000 रुपए दे के 50 लाख रुपए अगर मिल रहा है 30 साल में, तो ले लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अ गुड डील और अ बैड डील? शिवानी जी सेइंग नो। और कोई बताना चाहेगा yes or no about this? चलिए गाइस, मैं ही करता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो उसके ऊपर हम लेके चलेंगे। इसके अंदर गाइस, इफ यू थिंकिंग दैट दिस शुड अगेन बी अ बैड डिसीजन, करेक्ट, सो इफ विल बी लाइक अ बैड डिसीजन, तो इसके अंदर कैसे होने वाला है? अगर इसके अंदर हम देखें यू आर गेटिंग मोर देन 6%, तो इसके लिए आपकी कॉल क्या होनी चाहिए थी? yes, it should be a deal because it's giving you more than inflation rate। बट अभी मैंने आपको ऊपर वाला एग्जांपल दिया तो उससे आपका क्या हो गया? यू गेट बायस टुवर्ड दैट स्पेसिफिक एग्जांपल कि नहीं यार, ऊपर वाले एग्जांपल में तो कम हो रहा था, इस वाले में पता नहीं कम होगा कि नहीं होगा, तो आपने क्या किया? इसको भी मना कर दिया। करेक्ट? तो अगर हम डिसीजन अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से नहीं ले रहे, खाली बायसनेस के हिसाब से या कोई बैड एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस के हिसाब से ले रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, विल यू बिकम अ वेल्दी पर्सन और सुपर रिच पर्सन? क्या हम बन पाएंगे वो? लेट्स से कि आपने एक सही डिसीजन लिया, एक गलत डिसीजन लिया, फिर एक सही डिसीजन लिया, फिर एक गलत डिसीजन लिया, तो क्या हम लैडर के ऊपर जा रहे हैं या वहीं पे खड़े हुए हैं? वी आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट जीरो इटसेल्फ, वी आर नॉट मूविंग अप, राइट? तो अगर आपको वेल्दी और सुपर रिच बनना है तो आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है सारे करेक्ट होने चाहिए। और वो करेक्ट कैसे होंगे? क्या हम इमोशनली ले रहे हैं? क्या हम उनकी फेस वैल्यू के ऊपर ले रहे हैं? नहीं, इट हैज टू बी ऑन द कैलकुलेशन बेसिस।
अगर हम कैलकुलेट करके देखें और पता करें कि क्या वो 4-6% से ज्यादा है या कम है, और उसके बाद डिसीजन लें, ओनली देन इट विल हेल्प अस टू ग्रो। अगर फेस वैल्यू पे ले रहे हैं, जैसे पहले वाला इन्वेस्टमेंट था, वो गोइंग डाउन, और सेकंड में हमने बायस होके लिया कि नहीं यार पहले वाले में गलती हो गई तो इस वाले में भी गलती होगा, अगेन वी आर मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। बट हाउ टू कैलकुलेट दैट, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि 80 to 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, राइट? तो अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिएगा, क्योंकि पैराशूट और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो। लेट्स से देयर आर टू फ्रेंड्स कॉल्ड राम एंड श्याम, दोनों 18 साल के हैं। दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 2000 रुपीज पर ईयर, ओके। और उसमें से राम जो होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, वो 2000 रुपए साल के जमा करता रहता है। और एट द एज ऑफ 25 और 26 दे बोथ गेट मैरिड, ठीक है। 25 साल की उम्र में दोनों की शादी हो जाती है। राम की वाइफ आती है, वो कहती है राम वी कैन नॉट अफोर्ड दिस एक्सपेंस, हम एक्सपेंस को नहीं कर सकते, लेट्स स्टॉप दैट। तो राम जो है वो उस पैसे को जमा करना बंद कर देता है, बट अपने पैसे को वहीं पे रखता है जहाँ पे वो, लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं कि बैंक में कर रहा था, और वहीं पे पैसे को रखता है, दे कंटिन्यू। जबकि शाम की वाइफ आती है और बोलती है कि शाम तुम अब आज तक तुमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, तो लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग ओनली 2000 रुपीज। और शाम जो है वो इन्वेस्ट करता है 2000 रुपये मात्र फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, राइट? एट द एज ऑफ 65 लेट्स से दोनों के दोनों जाते हैं बैंक में, एंड एज्यूमिंग दे आर गेटिंग 20% रिटर्न। तो आपको क्या लगता है किसके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा होगा, राम के या श्याम के? राम ने जिसने मात्र 7 साल पैसे को इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया, या श्याम जिसने 40 साल लगातार 2-2 हजार रुपया साल का इन्वेस्ट किया है? कौन बताना चाहेगा? जितेंद्र जी, अनिल जी, रमाकांत जी, नरेंद्र जी? सर क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर कर दें। मतलब मैं जो समझा हूं कि राम ने 2000 रुपये 7 साल के लिए किया और फिर 20% पे उठा दिया, और 20% पे उठा नहीं दिया सर, वहीं पे पड़ा रहा, मतलब डेड है, उसमें छोड़ कुछ दिया नहीं उसने, हुआ। उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, पैसे को वहीं पे छोड़ दिया। मतलब कहाँ, सेविंग अकाउंट में या एफडी में, कहाँ पे? लेट्स से बैंक में एट द 20% के इंटरेस्ट पे। हाँ वही मैंने कहा, 20% मिलता रहा उसको फिर उसके हाँ, बाद। छोड़ दिया उसने, वहीं पे पैसे अच्छा, को छोड़ के तो खत्म उसको कर दिया। उसको उसको 40 इयर्स तक उस जो उसने 14,000 जमा किए थे 7 साल में, उस 14,000 पे उसको 20% मिलता रहा। और शाम को 26 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया, तो उसको अगले 40, मतलब दोनों 65 साल के हो गए हैं। अब करेक्ट, शाम को जो है उसको उसको भी 20% मिल रहा है, लेकिन वो हर साल 2,000 डाल रहा है। करेक्ट। तो ऑब्वियसली जिसने 2,000 हर साल डाले 40 साल तक, उसको तो मिलेगा ही ना ज्यादा। उसको ज्यादा मिलेगा, ओके, if I have understood the question correctly. करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा मिला होगा? देखिए, उसने तो 14,000 पे रोक लगा दी थी, और ये 26 से के बाद 40 साल तक इसने 2-2 हजार हर साल डाले। तो क्या नाम है, 80,000 तो इसके वैसे ही हो गए। उसके जो है 14,000 जो थे उस पे वो कमाई कर रहा है, इस पे ये 80,000 पे ग्रेजुअली कर रहा है ऑब्वियसली, बट मोटा मोटे क्या लगता है आपको कि कितना हो गया होगा? आपने इतना बोला तो और भी इतना बता दीजिए। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 40 साल में उसको 80,000 का जो है हर साल 20% उससे बढ़ रहा है। तो लेट्स से समथिंग लाइक 10 to 15 लाख मिल जाएगा। 10 to 15 लाख रुपीज। चलिए, और किसी से नहीं पूछेंगे, यही एक नॉर्मल इंसान। नरेंद्र जी क्या करते हैं वैसे आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सर। चार्टेड अकाउंटेंट है, चलिए। जो फिर मैं आगे क्वेश्चन नहीं समझ बोल में आया मुझे। कोई बात नहीं, फिर मैं आगे नहीं बोलूंगा। एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही कैलकुलेशन करता है सर, राइट? कि 2,000 रुपए जिसने डाले 40 साल के लिए, उसको इतना बन गया होगा एट द 20% रेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एट 20%
if person is investing 2,000 rupees per year, the amount will be somewhere around this, which is 1.5 CR. तो पहले तो हमारा दिमाग इसको देख के खराब चाहिए कि यार 2,000 रुपए अगर मैं डालूं at 20% will become this much of amount. 1.5 करोड़ रुपए बन जाता है सर, और कितना डालने पे? मात्र 2,000 रुपए. So that's the power of compounding. कंपाउंडिंग की थोड़ी सी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे मैं, राइट? और मजे की बात क्या है कि राम विल हैव मोर amount, which is what? 4 CR in his bank account as compared to Shyam. क्यों? क्योंकि राम ने 7 साल पैसे को इन्वेस्ट किया और उसके बाद छोड़ दिया, वहीं पे पैसा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिल रहा है. तो इफ यू स्टार्ट अर्ली, दैट्स ओनली रीजन एवरीवन सेज कि आपको जल्दी शुरू करना है, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है. दैट्स द एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग. कि आपने 2,000 रुपए 7 साल जमा किया, उसके बाद आप भूल गए, तो सोचिए भूल गए और आपको 4 करोड़ रुपए मिला, कैसे लगेगा नागेंद्र जी? बहुत सुपर सुपर, बहुत सुपर लगने वाला है, राइट? तो इसके पीछे का थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सकता है, विच इज वेरी सिंपल, विच इज वी कॉल द रूल ऑफ 72. क्या होता है रूल ऑफ 72? सर रूल ऑफ 72 है, मात्र क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, 72 लिखना है और उसको रेट ऑफ रिटर्न जो भी आपको मिल रहा है, जहां पे भी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इयर्स टू डबल. लेट्स से कि आपने अपना पैसा जो है एफडी में रखा हुआ है, तो एफडी में रखा हुआ, तो लेट्स से कि 6% एफडी पे अगर आपको मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 विल बी हाउ मच? 12, राइट? यानी कि आपका पैसा जितना भी आपने एफडी में रखा है, 12 साल में आपका पैसा डबल होने वाला है. या लेट्स से आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है जो कि आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, तो कितने साल में डबल हो जाएगा आपका पैसा? इन 6 years. करेक्ट? बिकॉज 72 डिवाइडेड बाय 12 विल बी 6. नागेंद्र जी आपके लिए क्वेश्चन. हाँ जी, बोलिए बोलिए. If you're getting like 24% interest, in how many years your money is going to double then? हाँ, वो तो 3 साल में होगा. 3 साल में हो जाएगा, राइट? और अगर आपको कोई ये बोलता है कि नागेंद्र जी मैं आपका पैसा 2 साल में डबल कर दूंगा, तो तब क्या रेट आपको मिल रहा है? Your voice is cracking. सर नागेंद्र जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई आपको बोले, हरी जी आपके पास आए और वो बोले कि नागेंद्र जी मेरे पास 50 लाख रुपए जमा कराइए और आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? 72 डिवाइडेड बाय 2, राइट, विच इज व्हाट? 36. 36. करेक्ट? तो इससे क्या हो जाएगा? अगर हमें ये पता चलना शुरू हो जाए कि क्या रिटर्न हमें मिल रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो इमोशनली होगी क्या? किसी के बहकावे में होगी, बायस की तरफ से होगी? नहीं. It should be well calculated. Correct. It has to be well calculated. Thank you, Rohit ji. 36. Right? तो सेम वेज में हम अब दोबारा से राम वाला सिनेरियो समझ लेते हैं कि 4 करोड़ रुपए कैसे आया, राइट? बहुत जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करूंगा. लेट्स से कि उसने जो 2,000 रुपए इकट्ठा किया था 20% के हिसाब से, दैट बिकम हाउ मच? दैट्स बिकम, सॉरी, 25,000 rupees. करेक्ट? आफ्टर द इंटरेस्ट पार्ट. अच्छा, तो हमें राम को कितना % रिटर्न मिल रहा था? 20%. So 72 divided by 20 will be how much? कौन बताएगा? जितेंद्र जी, नागेंद्र जी? 2.6. करेक्ट? तो कैलकुलेट की, सॉरी 3.6 नो 3.6. करेक्ट. मैं यही देखना चाहता था कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं. सुबह सुबह का टाइम है. ओके, तो 3.6 का मतलब क्या हो गया?
3.6 कैलकुलेशन years इजी करने के लिए थोड़ा इजी कर लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं, यानी कि हर 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, करेक्ट। और उन्होंने पैसा कितने साल के लिए छोड़ा था? फॉर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए था। तो 3.5, 40 ईयर्स को अगर हम 3.5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डबलिंग आने वाला है? कितने साल डबल होगा? 11 टाइम्स वेरी मिनिमम, करेक्ट। और राम का जो पैसा था, लेट्स से द एज ऑफ 25, उसके पास 25,000 रुपए जमा हो चुका है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कैलकुलेशन इजी करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके बाद हर 3.5 साल में क्या हो रहा है? पैसा डबल हो रहा है, करेक्ट। तो पहले साल में क्या होने वाला है? पहले 3.5 साल में क्या होगा? 25,000 का कितना हो जाएगा नागेंद्र जी? ये कौन बताएगा? 25,000 का डबल कितना होता है? 50,000 फर्स्ट टाइम डबलिंग पे। सेकेंड टाइम अगर हम उसे डबल करेंगे, मतलब कि आफ्टर 7 ईयर्स दैट विल बिकम व्हाट? 1 लाख, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। 10th टाइम जाके 256 हो रहा है, राइट। या 9th टाइम पे जाके कितना हो रहा है? 1 करोड़ एंड 28 लाख रुपीज। 10 टाइम में 256, और 256 का डबल कितना होता है? 5। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3.5 एंड 3.6, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 4 CR के आसपास it will be coming down. 512, right? Thank you. Right? तो इससे हमारा क्या होने वाला है? Guys, take a screenshot of this. It will only help you of rule of 72. I'm giving you a few seconds. You can take that. It will only help you to calculate the things in very easy way or manner. Okay. मेरे ख्याल से ले लिया होगा सबने। लेट्स मूव अहेड। इसके बारे में कौन जानता है? कौन बताएगा ये? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो क्वाड्रेंट गाइस। दिस बीन डिजाइंड बाय अ पर्सन कॉल्ड रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने लिखी है एक बुक रिच डैड पुअर डैड। किसी ने पढ़ी है तो मैसेज करके बता सकता है या हैंड्स अप करके बता सकता है। वो क्या बोलते हैं? He says each and every person he classify into 4 different quadrants, which is an employee, a self-employed, a business owner, or an investor. Employee कौन होता है? जो किसी के लिए काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो अपने लिए खुद के लिए काम करता है। बिजनेस ओनर कौन होता है? जिसके पास एक पूरा टीम होता है। और इन्वेस्टर जो पैसे से पैसा बनाता है। तो आज तक कोई भी जो इंसान आया है आपको, वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है? वो आपको एम्प्लॉयज, आज मैं आपको एम्प्लॉय से इन्वेस्टर की तरफ लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अच्छा, एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय जो किसी के लिए काम कर रहा है। और सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो अपने लिए खुद के लिए काम करते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, स्मॉल बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, यस। और बिजनेस ओनर जो बड़ा बिजनेस करते हैं, जो बड़ा बिजनेस करता है। जो बड़ा एटलीस्ट कंपनी जिनके होती है। पास में एटलीस्ट 50 से 60 लोगों का टीम है, राइट, उसी को मैं बिजनेस ओनर बोलता हूँ। छोटा शॉप ओनर जो है, अगर वो शटर खोलेगा उस दिन उसके लिए पैसा आएगा, तो वो बिजनेस ओनर नहीं है गाइस, इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय। अभिनव जी, मेरे हिसाब से जो आदमी खुद करेगा आपको ही उसको मिलेगा, तो सेल्फ एम्प्लॉयड। करेक्ट, जो भी खुद कर रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ। और राइट, जिसके लिए आदमी काम करते हैं वो बिजनेसमैन है, ऐसा मैं वो बोलता हूं। बिजनेस ओनर है। और इन्वेस्टर कौन है? जो पैसे से पैसे को बनाता है। तो मुझे बताइए, और आपको ये भी पता होगा कि मैक्सिमम 95% ऑफ जो वेल्थ है वो इन 2 लोगों के पास में है, विच इज कॉल्ड BNI। जबकि 95% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है? E और S में। तो मात्र 5% लोग हैं, उन्होंने 95% ऑफ वेल्थ को कंट्रोल किया हुआ है। और जो 95% लोग हैं उनके पास मात्र 5% पैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स क्रिएटेड बाय BNI।
बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ने बहुत सारा मैच झूठ फैलाया हुआ है कि यार बिजनेस करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, इन्वेस्टर बनने में बहुत दिक्कत हो सकता है। और वो बहुत सारे झूठ क्या हैं मैं जानना चाहता हूँ। नरेंद्र जी, शिवांगी जी, जितेंद्र जी, अनिल जी, क्योंकि आप लोग ही बात कर रहे हैं, पंकज जी, आप लोग इन्वेस्टर क्यों नहीं हैं? वाई यू नॉट एन इन्वेस्टर? पता सबको है कि पैसा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास में, फिर भी हम कहां पर लाई करते हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में। तो ऐसा क्यों है? मैं रीजन जानना चाहता हूं कि क्या क्या रीजंस हैं कि व्हाई वी आर नॉट ए बिजनेस ओनर और व्हाई वी आर नॉट एन इन्वेस्टर, स्पेसिफिकली इन्वेस्टर। रिस्क नहीं लेते ना, रिस्क नहीं लेते। रिस्क नहीं लेते हैं। देखो अभिनव जी, एक तो फियर ऑफ लॉस, मतलब रिस्क लेना नहीं है। सबसे हाँ, बड़ा बात है कि नॉलेज नहीं है। करेक्ट, फियर और ऑफ सब लोग लॉस। समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुगार है। राइट, यानी कि नॉलेज नहीं है हमारे पास में। और एक रीजन मोटा आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, लोग यहाँ बोल नहीं रहे हैं बट जो मैंने लिखाया हुआ है, विच इज लाइक कि सर इन्वेस्टर बनने के लिए तो पैसा चाहिए। एम आई करेक्ट? क्या आप भी ऐसे ही Yes. सोचते हैं कि इन्वेस्टर बनने के लिए तो पैसा चाहिए होता है? तो आज मैं आपके दो तीन जो फियर हैं या जो झूठ हैं, मिथ्स हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करूंगा। राइट, सबसे पहले पैसा से ही लेके शुरू करते हैं कि आपको इन्वेस्टर बनने के लिए पैसा चाहिए। तो हरी जी, आपसे ही बात कर लेते हैं। अगर आप एक किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, ठीक है, ऑफ से 500 रुपीज, विल यू बिकम ए इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी, येस और नो? यस। यानी कि 500 रुपए से भी इन्वेस्टर बन गए आप। अगर हरी जी आप किसी कंपनी का 100 रुपए का एक मात्र शेयर खरीदते हैं तो क्या आप इन्वेस्टर बन गए, येस और नो? यस यस यस। करेक्ट। और अगर आप 10 रुपए का भी शेयर खरीद रहे हैं एक, तो विल यू बिकम इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी? यस। यस। राइट, सो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए टू बिकम एन इन्वेस्टर। इट्स अ मिथ विच इज बीन क्रिएटेड बाय दीज टू सेट ऑफ पीपल विच इज कॉल्ड बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि पीपल फ्रॉम ईएनएस शुड कम इनटू देयर ओरिजिन एंड स्टार्ट ईटिंग देयर प्रॉफिट्स। जैसे कि अगर मेरा एक कहते हैं कपड़े का दुकान है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे पड़ोस में एक और कपड़े का दुकान खुल जाए, क्योंकि अगर वो खुलेगा तो क्या होने वाला है? दैट विल ईट अप माय कंपटीशन। प्रॉफिट, कंपटीशन आएगा। तो वैसे ही बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कभी नहीं चाहते हैं कि उनके ओरिजिन में कोई आए और उनके प्रॉफिट्स को लेना शुरू कर दे। तो इन्होंने बहुत सारा झूठ फैलाया हुआ है। राइट, उसके बाद और क्या झूठ होता है? एक तो पैसे का झूठ है, राइट। उसके बाद और दो तीन झूठ होते हैं, वो मैं आगे तोड़ने की कोशिश करूंगा, विच इज लाइक हमें टाइम चाहिए होता है। राइट, बहुत लोग कहते हैं हमें नॉलेज चाहिए। तो मेरा बहुत एक मैं कहते हैं लाइन बोलता हूं कि नो नॉलेज एंड नो स्किल इज रिक्वायर्ड टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तो उसके बाद एक और मैंने लाइन यहाँ पे लिखा हुआ, दैट स्किल रिक्वायर्ड टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट इज नियरली जीरो। तो किस किस को लगता है ये सही है? ये ऐसा नहीं होता है। क्या ये सही है कि गलत है? सही है, क्यों? जो मैंने सीखा है आपसे सही है। मतलब कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में स्किल रिक्वायर्ड है कि नहीं है? तो बहुत लोग कहते हैं सर बिल्कुल स्किल रिक्वायर्ड है, हमें तो बहुत कुछ चीजें देखना पड़ता है। बट मैं कहता हूँ इट्स नियरली जीरो। अब मैं आगे वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है एक्चुअल में। राइट, तो जहां पे हम अगर लेट्स से कि एक प्लेस है जहां पे मैं अगर फल खरीदता हूं तो उसको हम क्या कहते हैं? अब फ्रूट मार्केट। करेक्ट। जहां से मैं सब्जी खरीदने जाता हूं उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल मार्केट। जहां पे मछली का खरीद और बेचा जाता तो उसको क्या बोला जाता है? अ फिश मार्केट। तो वैसे ही जहां पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता तो उसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट, वेयर स्टॉक्स आर traded buy and sell, which is called a stock market. ठीक है।
तो वैसे ही स्टॉक मार्केट जैसे अलग अलग मंडियां होती हैं सब्जी की, फ्रूट की, वैसे ही स्टॉक की भी दो बहुत बड़ी बड़ी मंडी हैं जिनको बोला जाता है BSE एंड NSE। BSE का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप जानते हैं सेंसेक्स के नाम से, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप निफ्टी के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे लोग। तो ये क्या होती हैं? हमेशा बोला जाता है जब जब सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जाता है मार्केट विल गो अप, और जब जब सेंसेक्स निफ्टी नीचे आता है तो मार्केट नीचे आता है, राइट? सो दे आर द बैरोमीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? बिकॉज जो निफ्टी है विच इज व्हाट, इट हैज 2050 सॉरी टॉप 50 कंपनी मार्केट शेयर। निफ्टी के टॉप 50 कंपनी का मार्केट शेयर इज व्हाट, इज 60 to 70% ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज $3 ट्रिलियन, जिसको नरेंद्र मोदी जी 5 ट्रिलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से 60 to 70% क्या है? खाली निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज, यानी कि 3 ट्रिलियन में से 2 ट्रिलियन to 2.25 ट्रिलियन इज व्हाट, ओनली निफ्टी की कंपनी का मार्केट शेयर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब जब निफ्टी ऊपर जाता है मार्केट, इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाती है, और जब जब निफ्टी नीचे आता है इंडियन इकोनॉमी नीचे आती है। ओके, तो गाइज मेरे ख्याल से अभी सेशन बहुत ज्यादा है। मैंने वैसे भी पहले बात किया था कि आई विल टेक समवेयर अराउंड 8:30 तक का सेशन जाएगा, बट यू गाइज आर सेइंग दैट वे लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आई कैन टेक दैट एंड आई विल कवर दिस थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट which will be again next Saturday, or we can see which Saturday we can cover it up, because there's a lot of more things which I have planned. But So, Vinod ji, sorry to interrupt you. You can take few questions, yeah, and sure. we can plan. Like next session is already planned, so we can keep your session on after that, like 15 No issue. after 15 Yes, days. sure. Yeah, we can Yeah. coordinate on that. And then you can take a full-fledged session. Sure. So, No issues. as we are Shivani already ji, you can running ask. late. Yeah, I can understand that. So if you anyone can, is having any specific question, you can ask Abhinav ji. Then we would like to wrap up the session. guys, any questions? Because I have not started anything as of now. I'm just about to give you a little glimpse of the normal things. कोई भी question आपका regards to stock market or anything, you can ask me on here to answer it. Yes, Shivani ji, आपका कोई question जो या कोई chat में You can summarize whatever you are bringing. You can summarize, just give them a glance, and we can plan another session. Sir, I want to know about this pension plan. Suppose I invest in for 5 years, how can I benefit? See sir, pension plan depend करता है आपके 2-4 चीजों के ऊपर, which is like कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, just give me a moment, sorry, कि अभी आप कौन किसने क्वेश्चन पूछा, पहले नाम बताएंगे और अपना एज बताएंगे। Mohinder Rupal. Mohinder Rupal, I am practicing in Supreme Court. I am based in Delhi. Okay. Now I am nearing now 60, so I want to know, because I have never invested in stocks. I have invested in properties, so for which I am getting rental income. Okay. So that way I have no issue. But then the thing is, the way you have explained, it's really very illuminating, because we never understood the way you have explained. So it's very nicely done. So, but now the thing is, see, when I'm now approaching 60, I would like to know, see, if I then target myself that, I have to hang my shoes after 5 years or 6 years, then I want to have some corpus in terms of stock. So what is the best way to do that in stocks? See, sir, as of now, because you're close to your retirement,
And I always say that if you're close to retirement, not put everything into the knowledge about it. You can route it through the mutual fund and stuff. So the best way as of now will be through going through the mutual fund thing, because if you don't have any knowledge and if you go into the market is very brutal, right? तो हमें अभी मैंने कि थोड़ा सा हम अगर नेक्स्ट सेशन में अगर आप आ सकें और समझने की कोशिश करें कि मार्केट इतना बुरा नहीं है, बट यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें टाइम देना पड़ता है. तो जैसे मैंने बोला कि नो स्किल required and no knowledge required to make money in stock market, right? But that will be for the little longer period of time. If you're saying for only 5 to 6 years of time, it will not make any sense. ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारा पास थोड़ा सा कम है अभी आपके पास में, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अगर आप जाएं तो ज्यादा बढ़िया है, या अगर आप नेक्स्ट कुछ सेशंस को अगर आप ले सकें तो वो हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ इट विल बी लाइक कि ऐसे ही करना है. But We would like to know, sir, when it will be possible for you to have the next session, maybe next week. sure. You are muted, I think. Sorry. So it will be Hariji and Shivani ji will inform you accordingly. Okay. But as of now, what I can only suggest you that if you don't have any knowledge, route it through your investment plans through mutual fund as of now. But once you have that knowledge, only then go through it, because it will take little time. Okay, thank you. ऐसा नहीं है कि ये कोई कहते हैं आपने जादू की छड़ी घुमाई और everything will be fall into place in next 4 or 5 years of time, because more of understanding has to be required actually. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर सर, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ समझने की कोशिश करना पड़ेगा. एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक जिसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जितना कम नॉलेज आपके पास में होगा, अगर आपको 2+2 आता है करना, that's the only maths you require in stock market to make money. That's what it is. But you require a lot of time and patience. Understanding has to be there. That's the main thing. But अगर आप खाली normal उसके हिसाब से जाना चाहते हैं, तो best way will be through the mutual fund as of now. After this, the normal theory class which we're talking about. Any Thank other you. questions, guys? Thank you, sir. Or we can connect one-to-one, Nirji, so we can I can help you out with that. Cool. Sir, kindly share your mobile number. Hariji, can I share the mobile number, Shivani ji? Yes, Oh, you yes, can. ma'am. Yes, you can. Okay. Guys, my number is 7503. Just a minute, sir. 7503 1177 1177 01. Thank you. मोहिंदर जी आपके बगल में रहते हैं नोएडा में. Okay. मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ. It'll be like easy. So I have already put. Okay. Thank you, Shivani. All right, guys, if you don't have any questions, then I'll try to wrap up some of the things. That the only thing which I've spoken about is, which is you should not earn more. It is more of investment has to be there if you want to become a wealthy person. Plus investment has to be there where you're beating the inflation, which is like any investment which is giving you more than 6%, investment should be there only, not into the savings bank account. वहां पे पैसा नहीं रखना है.
क्योंकि वहां पैसा बढ़ नहीं रहा है, नीचे ही आ रहा है। एंड यू शुड स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, आपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, आपके बच्चों के लिए कर सकते हैं, बट स्टार्ट अर्ली, मेक ए हैबिट फॉर देम कि एटलीस्ट 500, 1000 रुपए, 2000 भी अगर वो ज्यादा लंबे समय के लिए करते हैं, तो द कंपाउंडिंग इफेक्ट विल बी मच मच मोर व्हाट यू कैन इवन थिंक ऑफ, राइट। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने शुरू नहीं किया है टॉपिक, विच इज लाइक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको ना पैसा चाहिए, ना स्किल चाहिए, ना टाइम चाहिए। इसके ऊपर हमने बात अभी किया नहीं है, बट दैट्स व्हाट विल बी। और पैसे से घबराइए मत, इट विल बी लाइक ओनली हेल्प यू आउट टू मेक मोर मनी। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको पैसा, कोई भी चीज ऐसी खरीदे जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करती है। इट शुड बी अ गुड एक्सपेंस, नॉट अ बैड एक्सपेंस, ठीक है। So thank you very much, guys. I'm first of all very sorry that I've taken a lot of time and I've started a little late, but I'll try to cover up everything in the next few sessions, which I'll coordinate with Hariji and Shivani ji. It was a nice audience that you guys are. I hope I've justified the time which I've taken today from you guys. Thank you. So, thank you, Abhinav ji, for sharing your knowledge with us. And we would like to keep your session on the next 8th, I suppose, no? 8th of June. Are you available? So we can keep your next session. मैम नक्की है ना मैडम? हाँ, next next Pinaki Ray is we have dedicated session with Pinaki Ray on communication skills for next Saturday, that is first. And then we can repeat Abhinav's session for 8th of July. ठीक है शिवानी जी, we'll coordinate. That would be fine. We will coordinate and let our audience know. Yes. Yeah. Okay. Yes. We have also lined a few other speakers, so we'll decide the dates. Sure, that will be wonderful. Thank you. Thank you everyone. एक बात ज्यादा बोलना है अभिनव जी, हाँ जी, इस सबके लिए कि आप पहले इन्वेस्ट करिए और उसमें जो आता है उसमें खर्चा करिए। पहले खर्चा बचाइए, अभिनव सेड इन्वेस्ट मनी, दैट इज सेविंग, और जो इन्वेस्टमेंट से आता है उसमें आप खर्चा करिए तो मानना नहीं आएगा इतना। व्हाट डू यू से अभिनव? बिल्कुल बिल्कुल हरी जी, बहुत ही अच्छी बात बोली है आपने कि इन्वेस्ट करके जो पैसा आता है उसमें से खर्चा करना है। जो इनकम में से पहले आपको अपना सेविंग्स को साइड में करके इन्वेस्टमेंट करना है उस सेविंग्स में से, और जो पैसा बच जाता है उसको आपको एक्सपेंस करना है। Yes. So let's say just 1 more minute, Shivani ji, I'm so sorry. Let's say if you're earning 1 lakh rupees and you plan to invest 20,000 rupees. So invest that 20,000 rupees as soon as you receive that 1 lakh rupees into your bank account as a salary, not after doing all your expenses. Actually, after doing expenses, बचता ही नहीं है फिर वो। बचता ही नहीं है, करेक्ट। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको पहले ही निकालना है। उससे दो फायदा होने वाला है, एक आपका इन्वेस्टमेंट विल बी ऑन द कांस्टेंट पेस, सेकंड योर एक्सपेंसेस विल हैव एन अपर लिमिट आल्सो। नहीं तो जैसे अभी शिवानी जी ने बोला बचेगा ही नहीं। कभी आपका 90,000 रुपए खर्च हो रहा होगा, कभी 95,000 रुपीज, कभी अगर आप 1 लाख से भी ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं। बट अगर आपके दिमाग को पता होगा कि यार आपको 1 लाख रुपीज में से खाली 80 ही बचा है, तो आपका दिमाग को क्या लगेगा, यू ओनली गेटिंग 80,000 रुपीज, सो विल गिव यू एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द 80,000 रुपीज, नॉट अकॉर्डिंग टू 1 लाख रुपीज। In that case, our brain will work कि next month में expense करेंगे, expense will be postponed, otherwise savings will be postponed. Correct. So beautiful. Yes. In that way, expense has an upper limit in it, and your savings will be on the constant pace, and investment will be on the constant pace. Will go up. Okay. So on this note, thank you very much, guys. Enjoy your weekend. Thank you, Ariji. Thank you, Shivani. Thank you, everyone. Thank you. Yeah. Thank you.